But these are the type of questions that have been coming in recent times in JEE Advanced. Yo, welcome to Physics with Vinay. Hi, I'm Manopal and I'm back with season 7, episode number 1 from the prediction series. If you're new here, prediction series में मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसे questions लेकर आता हूँ which require out of the box thinking, जहाँ पे you will encounter some different concept or some different sort of visualization required. But these are the type of questions that have been coming in recent times in JEE Advanced. In fact, JEE Advanced 2026 of physics paper was regarded as one of the toughest physics papers in recent times, in the recent years. तो उसमें कई सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो जनरली कोचिंग मटेरियल वगैरह में नहीं पाए जाएंगे, जो स्टैंडर्ड मटेरियल होता है उसमें नहीं पाए जाएंगे. So that is what I do in this prediction series, and over the last 6 seasons, many students have found this very useful in order to expand their thinking. जो JEE Advanced level पे जो thinking required होता है, जिस तरीके का approach, problem solving approach required होता है, so this series has been very useful in developing that aspect of physics for many students, including a lot of toppers of the last few years. So I encourage you to start watching the previous 6 seasons of prediction as well as rare series जो मेरे चैनल पे मैं चला रहा हूँ, and you will every single episode will give you some new learning, some new insight. Alright, so आज हम शुरू कर रहे हैं पहला एपिसोड from season 7 prediction series, and आज के एपिसोड में मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ. बहुत ही शॉर्ट बट स्वीट सा क्वेश्चन है. क्वेश्चन दिखने में बहुत सिंपल है, but it's most likely it's going to be something new that you may not have encountered in your studies. तो rotation का question करेंगे. I'm going to display the question on the screen, and you can pause the video and try it out, and उसके बाद you can take a look at my solution. Alright, so question क्या बोल रहा है? The setup is very simple. मेरे पास एक रिंग है जो रोल हो रहा है, and it undergoes a collision in inelastic collision with a smooth wall. Alright, ये रोल हो रहा है रिंग, and ये रफ सरफेस है. So the ring is rolling and it strikes a smooth vertical wall जिसका coefficient of restriction E है, कुछ inelastic collision हो रहा है. And I want to find the maximum coefficient of restitution such that after the first collision, the ring never achieves rolling. इसका मतलब वो pure rolling कभी नहीं achieve करेगा once it strikes the wall. Alright. So what is the condition for this? What the equation should be right for this condition to be achieved? कि वो कभी नहीं pure rolling achieve करेगा. So सबसे पहले तो what is going to happen? Let's say इसका कुछ angular velocity omega naught है, तो ऑफ कोर्स इसका वेलोसिटी ओमेगा नॉट इनटू आर होगा. आर इज द रेडियस. प्योर रोलिंग कर रहा है पहले. अब रोल होते होते वॉल को स्ट्राइक करेगा. जैसे ही वॉल को स्ट्राइक करता है, इट विल एक्सपीरियंस एन इम्पल्स बाय द वॉल. देयर इज नो फ्रिक्शन. वॉल एंड रिंग के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है बिकॉज वॉल स्मूथ है, राइट. सो जो भी इम्पल्स होगा वो नॉर्मल इम्पल्स होगा. दिस नॉर्मल इम्पल्स विल गो थ्रू द सेंटर, सो इट विल नॉट प्रोड्यूस एनी टॉर्क. We're going to assume uniform mass distribution, so the center of mass and the center is the same, so it is not going to produce any torque, and therefore जो angular velocity होगा वो change नहीं होगा during collision. Alright, so angular velocity just after collision, अगर मैं just after collision बनाऊं तो angular velocity इस तरीके से omega naught ही होगा, but velocity of the center of mass will become e omega naught r. Coefficient of restitution. बेसिकली कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कहाँ पर कौन से वेलोसिटीज को रिलेट करता है? जो वेलोसिटीज जो सरफेसेस स्ट्राइक हो रहे हैं उसके वेलोसिटीज, ओके, उसके नॉर्मल कंपोनेंट्स. सो अगर केयरफुली रिगरसली करना हो तो जब वो स्ट्राइक कर रहा है तो कौन सा पॉइंट स्ट्राइक कर रहा है रिंग का? ये राइट मोस्ट पॉइंट. उसका वेलोसिटी क्या है? उसका वेलोसिटी एक ओमेगा नॉट आर एस है और एक ओमेगा नॉट आर एस है जस्ट बिफोर कोलिजन. एंड देन आफ्टर कोलिजन जो नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो रिवर्स हो जाएगा एंड कितना बन जाएगा? ई ओमेगा नॉट आर. ठीक है. जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो उसको कुछ नहीं है. ओके, तो जो इसका जो नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वही सेंटर ऑफ मास का भी वेलोसिटी होना चाहिए बिकॉज इट्स अ रिजिड बॉडी, राइट. सो सेंटर ऑफ मास का भी वेलोसिटी लेफ्ट में ई ओमेगा नॉट आर हो जाएगा. ओके, सो यू शुड जस्ट बी अ लिटिल केयरफुल
that coefficient of restitution doesn't relate the velocity of the center of mass directly. We arrived at the center of mass velocity as this indirectly by considering the point which is actually colliding. उसका velocity को e omega naught r लिखा, फिर rigid body है तो फिर obviously center of mass और इन दोनों का horizontal component of velocity same होना चाहिए. ओके तो अब ये तो हो गया, ठीक है. अब जस्ट आफ्टर कोलिजन ये सिचुएशन है. नाउ आफ्टर सम टाइम द रिंग विल अचीव रोलिंग इन अ जनरल केस. जनरल केस मतलब अगर ये बॉल नहीं होता तो रिंग कुड हैव अचीव्ड रोलिंग. तो कैसे रिंग, अगर रिंग रोल होगा तो उसका क्या कंडीशन है? लेट्स जस्ट एनालाइज. अगर रिंग रोल होगा, इफ रिंग स्टार्ट्स रोलिंग, तो कौन से डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी होगा? विल इट बी क्लॉकवाइज और विल इट बी एंटी क्लॉकवाइज? लेट्स आंसर दैट फर्स्ट. सो ऐसे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए कि अगर रिंग रोलिंग शुरू करता है आफ्टर द फर्स्ट कोलिजन तो कौन से सेंस में रोल करेगा, इस तरीके की, इस तरीके से, उसको कैसे क्विकली देखें. यू शुड लुक एट any point on the ground. After the first collision, the forces that will act are normal force by the ground, gravity and friction. Correct? एक mu n friction लगेगा, right? n का वैल्यू तो mg है, so mu mg friction लगेगा. So if I look at a point on any point on the ground, अगर point A बोलूं, तो कैन यू सी कि टॉर्क अबाउट ए इज जीरो, बिकॉज नॉर्मल एंड ग्रेविटी का टॉर्क तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा फ्रिक्शन विच इज पासिंग थ्रू ए. तो टॉर्क अबाउट ग्रेविटी, सॉरी टॉर्क अबाउट पॉइंट ए ऑफ फ्रिक्शन इज जीरो एंड देयरफॉर एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ए इज कंजर्व्ड. ओके, नाउ जस्ट आफ्टर कोलिजन एंगुलर मोमेंटम कौन से डायरेक्शन में अबाउट पॉइंट ए? अगर मैं जस्ट आफ्टर कोलिजन देखूं, जस्ट आफ्टर कोलिजन बात करूं, ये वाला सिचुएशन, तो पॉइंट ए कहीं भी ले लो, इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे पॉइंट ए कहीं भी ले लो, सपोज यहां पे लेता हूं पॉइंट ए, ठीक है. तो इसका वेलोसिटी क्या है? ई ओमेगा नॉट आर, एंड एंगुलर वेलोसिटी क्या है? ओमेगा नॉट. करेक्ट. तो पॉइंट ए के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखूं मैं? कैसे लिखते हैं जनरल पॉइंट के अबाउट व्हेन रोटेशन एंड ट्रांसलेशन इज बोथ इन्वॉल्व्ड? कैसे लिखा जाता है? We write ICM ओमेगा प्लस R क्रॉस MVCM. सो ICM ओमेगा अगर मैं इनवर्ड्स को पॉजिटिव मानूं तो ICM ओमेगा तो पॉजिटिव हो गया, तो वो कितना बन जाएगा? MR स्क्वायर ओमेगा नॉट. एंड R क्रॉस MVCM, सो R, ये सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर है फ्रॉम पॉइंट ए. VCM क्या है? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, इस डायरेक्शन में है. करेक्ट. जनरल बताता हूँ, दिस इज ICM ओमेगा प्लस R क्रॉस MVCM, ऐसे लिखा जाता है. दिस इज द सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में एंगुलर मोमेंटम, एंड दिस इज लाइक एंटायर बॉडी हैज बीन रिप्लेस्ड बाय पॉइंट पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ मास, उसका एंगुलर मोमेंटम, ऐसा सोच सकते हो. ठीक है. सो ये सेकेंड टर्म कैसे आएगा? RCM क्रॉस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए अपने को क्रॉस प्रोडक्ट में, बट वो डायरेक्शन क्या है? कैन यू सी कि RCM तो ऐसे है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास लेफ्टवर्ड्स है, टेल्स को ज्वाइन करो एंड देन चेक द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट R क्रॉस V आउटवर्ड्स, तो वो नेगेटिव आ जाएगा. कितना आ जाएगा? माइनस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू, करेक्ट. तो ये बन जाएगा, स्मॉल m ले लेता हूं, तो ये बन जाएगा 1 माइनस e टाइम्स, which is positive, right? This is the angular momentum about point A, which is positive. इसका मतलब फाइनल एंगुलर मोमेंटम कौन सा डायरेक्शन होना चाहिए? फाइनल एंगुलर मोमेंटम शुड आल्सो बी इनवर्ड्स, राइट? नाउ व्हेन रोलिंग बिगिंस, एक चीज है तुम याद रख सकते हो कि जब भी रोलिंग हो रहा है तो अबाउट एनी पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगुलर मोमेंटम कैन बी रिटन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया बट I over into ओमेगा अबाउट अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड. इसको प्रूव भी बहुत इजी है, बिकॉज जब वो रोल हो रहा है फाइनली कुछ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड ये हो जाएगा ओमेगा आर, तो
ये RCM, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास इज mr², तो ये वाला ये टर्म हो गया. नाउ कैन यू सी RCM क्रॉस ओमेगा r, RCM क्रॉस VCM इनवर्स ही है तो प्लस होगा. कितना हो जाएगा? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है, सो r इंटू m इंटू VCM विच इज ओमेगा r. ठीक है. तो इन जनरल अगर मैं बोलूं कोई ये रिंग भी नहीं होगा, डिस्क होगा, स्फीयर होगा, जो भी होगा, the angular momentum about a point on the ground when rolling happens is ICM omega plus r into mass into velocity of center of mass. Because of this positive sign, you get ICM plus mr². What is that? Moment of inertia. What I? ये जनरल बता रहा हूं. अब रिंग के लिए ये बन जाएगा 2mr². Correct. Now can you see that we assume final angular velocity to be clockwise? Why? Because it has to be clockwise, because I know angular momentum has to be inwards, and therefore final angular velocity also has to be inwards because of this. जिस direction में ओमेगा उसी direction में angular momentum भी होना पड़ेगा about pointing, right? So यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाएगा? 2mr² ओमेगा, and therefore equating, इसको अगर मैं equate करूँ तो मेरे पास क्योंकि conserved angular momentum, तो मेरे पास क्या बन जाएगा? 1 minus e times omega naught should be equal to 2 omega, right? So final omega आ जाएगा 1 minus e times omega naught. ना ये सब क्यों कर रहे हैं अपन? What is the final condition? मुझे चाहिए क्या? ये सब क्वेश्चन में सॉल्व करके मिला क्या मुझे? मेरे को बस फाइनल एंगुलर वेलोसिटी मिला मुझे, राइट? बट उसके आगे मैं क्या करूँ इसका? The point is that ये जो if the ring starts rolling, I want to find the time in which the ring will start rolling. If the ring hits the wall again before the rolling happens, then that is what I want. इतना हमें समझ में आ गया कि it is going to hit the wall. ये सब करने का पॉइंट क्या था? We did all of this to prove that the angular velocity of the ring is inwards. मतलब the ring is going to roll to the right ultimately. It will strike the wall, come back to the left, and then again start ultimately moving to the right. ठीक है? So if rolling happens, it's going to move to the right. So basically it's trying to move to the right. So the ring is going to collide again with the wall. ये समझ में? This is going to happen on its own. हमने कुछ नहीं किया, हमने बस इनिशियली उसको रोलिंग करके सेट कर दिया, तो वो जाएगा, फिर कोलाइड होकर वापस लेफ्ट में आएगा, तो फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, इट विल ब्रिंग इट बैक and will bring it back and hit the wall again. If it hits the wall before rolling begins, then that is our condition that rolling was never achieved, because it will keep hitting the wall, keep coming back, and in order to try to achieve rolling again वो try करेगा rolling करने को, but if it hits the wall again before the rolling begins, then it will never achieve rolling. That is the condition. All right. So question is, दिखने में बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बट ये थोड़ा अपने को विजुअलाइज करके सोचना पड़ेगा. वी हैड टू डिड्यूस दैट द रिंग विल हिट द वॉल अगेन. सो क्या करना पड़ेगा मुझे? आई वांट टू कैलकुलेट द टाइम इन विच रोलिंग बिगिंस. तो वो कैसे कैलकुलेट करूं? द वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास का फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा इफ रोलिंग बिगिंस. ऑलराइट, आई एम ऑपरेटिंग अंडर द assumption that rolling begins. So if rolling begins, velocity of final velocity of center of mass would be 1 minus e omega naught r. Correct? And ये by 2 होना चाहिए, सॉरी. ठीक है. So this is the velocity of center of mass once rolling begins. तो कितना टाइम लगा होगा? The time taken would be, initial velocity कितना था? E omega naught r just after collision, leftwards, and final velocity कितना है? This much rightwards. तो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी कितना हो गया? 1 minus e by 2 plus e. करेक्ट? ऑपोजिट डायरेक्शन है ना. फाइनल वेलोसिटी इतना है राइटवर्ड्स, इनिशियल वेलोसिटी इतना था. तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन विल बी टाइम. एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना है? म्यू जी, म्यू एम जी डिवाइड बाय मास. ठीक है. तो देखो ये क्या बन जाएगा? 1 plus e ठीक है. This is the time if rolling were to happen. This is the time in which it will begin.
Okay, now how much time will it take to hit the wall if rolling doesn't begin? If no rolling occurs, time to hit the wall, अगर रोलिंग अकर करेगा ही नहीं कभी, तो मतलब पूरा टाइम स्लिपिंग होगा। तो पूरे टाइम स्लिपिंग में उसको पूरा यूटर्न लेके वापस आने में कितना टाइम लगेगा? बिकॉज एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो जो वेलोसिटी, जो स्पीड से लेफ्टवर्ड गया उतने ही स्पीड से वापस आएगा। इट्स लाइक यू थ्रो अ बॉल विद स्पीड यू, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है g डाउनवर्ड्स, तो इट विल कम बैक विद स्पीड यू, राइट? सेम थिंग हियर, कांस्टेंट एक्सेलरेशन म्यू g टू द राइट है, लेफ्टवर्ड तुमने प्रोजेक्ट किया सेंटर ऑफ मास को e ओमेगा नॉट r से, तो उतने ही स्पीड से वापस आएगा। सो कितना चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो गया? 2 e ओमेगा नॉट r डिवाइडेड बाय म्यू g। दिस इज द टाइम to hit the wall, to come back to the wall, if rolling never occurred. So now what is the condition? That if rolling never has to occur, it has to hit the wall before rolling occurs. So this time has to be lesser than this. ठीक है, तो ये बन जाएगा 2e should be lesser than 1 plus e by 2. So 4e should be lesser than 1 plus e. So e should be lesser than, ठीक है? So just critical अगर बोलो तो इक्वालिटी भी लगा सकते हो, तो माय आंसर टू द क्वेश्चन वुड बी 1/3। ठीक है, सो इट्स अ ब्यूटिफुल क्वेश्चन इन विच वी हैड टू फर्स्ट फिगर आउट दैट द रिंग इज गोइंग टू हिट द बॉल अगेन ऑन इट्स ओन, एंड देन वी हैड टू सेट द कंडीशन दैट the rolling should never occur, so the time in which it hits the ball again should be lesser than the time it will take to roll. All right, अगर ये बॉल तुमने फर्स्ट कोलिजन के बाद बॉल हटा दिया तो फिर तो इवेंचुअली रोल करेगा ही करेगा, इतने टाइम में रोल करेगा, ठीक है? बट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द बॉल, फॉर दिस कंडीशन रोलिंग विल नेवर अकर। ठीक है, सो दीस आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस आई ब्रिंग इन द प्रेडिक्शन सीरीज, एंड दीस आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट हैव बीन कमिंग इन जेईई एडवांस इन रीसेंट टाइम्स। अगर तुम 2027 एस्पिरेंट हो तो ऐसे बहुत सारे एपिसोड्स मैंने ऑलरेडी डाल चुका हूँ सीजन 1 से सीजन 6 तक, सो prediction as well as rare series. So I will highly encourage कि you start watching those episodes. तुम्हारा automatic you will learn many new concepts that are not usually taught in coaching or that are not usually in coaching material जो तुम solve करते हो as part of your general homework. Alright, so I hope you enjoyed this episode. Let me know in the comment section. I will see you next time and I will see you at the top.